I'm going to tell you about the imperialism and nationalism that stands from timeline from 1850 to 1964, and what was basically the theory of imperialism with special reference to Rudolf Hilferding was all about in this video. So अब हम Rudolf Hilferding के बारे में पढ़ेंगे and what was the objectives. Firstly, what finance capitalism was all about, and what is the distinction between the notion of the latest phase, and why is it so important to study the Rudolf Hilferding was in all in this video. हम इसमें बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हमारे यही हैं. तो अब हम स्टार्ट करते हैं. पहले हम देखते हैं कि इंपीरियलिज्म आखिरकार है क्या. ठीक है. द थ्योरी ऑफ इंपीरियलिज्म refers to a range of theoretical approaches to understand the expansion of capitalism into the new areas that may lead to the dominance of some countries over the other, that is known as the imperialism. मतलब जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पे कंट्रोल करती है उसको हम इंपीरियलिज्म कहते हैं. तो अब हम जितनी भी हमारी जो थ्योरीज हैं इंपीरियलिज्म की वो हमारी मार्क्सिज्म से जुड़ी होती हैं और इनको टर्म दिया जाता है एज अ क्लासिकल मार्क्सिस्ट थ्योरीज. द इकोनॉमिक थ्योरीज जो हमारी मार्क्सिज्म से जुड़ी होती हैं दैट वे नोन एज द क्लासिकल मार्क्सिस्ट थ्योरीज. एंड अब इंपीरियलिज्म के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, फीचर्स होते हैं, जैसे कि फर्स्टली द शार्प इंक्रीज इन द कैपिटल, मेन एंड कॉमोडिटी, एडवांस एंड सुपीरियर टेक्नोलॉजी, competition between advanced capitalist country, interdependent set of relation between the countries at different level of industrial development. These all are the basic characteristic features of the imperialism. And finally we will study about the what is the basic background of the Rudolf Hilferding. Okay, so Rudolf Hilferding from 1877 to 1941 was all his the timeline, and a prominent Marxist theoretician and socialist politician in Austria and Germany was Rudolf Hilferding. And Hilferding's magnum opus work was the Das Finanzkapital, or what we know as Finance Capital, a study of the latest phase in the capitalist development. And he published this book in the 1910. The author, at the age of 33, was already well known in the community of German-speaking Marxist economists. Hilferding studied medicine at the University of Vienna and obtained the doctorate in 1901. However, he practiced medicine only in 1906, and thereafter he devoted exclusively to the politics and study of economic theory known as the meteorocentric theory. तो इस बेसिक बैकग्राउंड में हम क्या देखते हैं कि जो रुडोल्फ हिल्फर्डिंग है उसका एक जो प्रोमिनेंट वर्क है फाइनेंस कैपिटल, वो पब्लिश हुआ था 1910 में, और 1901 में वो एक उन्होंने डॉक्टरेट की पढ़ाई जो है वो करी थी, और 1906 तक उसको एक एज अ प्रोफेशन जो है उन्होंने काम करा था. बट फ्रॉम 1906 टू 1910 उन्होंने पूरा अपने आप को एक्सक्लूसिवली जो है उन्होंने अपनी इकोनॉमिक थ्योरी को उन्होंने पढ़ने में अपने आप को डिवोट कर दिया, जिसको हम मेटेरोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं. अब ये जो हिल्फर्डिंग है हमारे दो नोशंस पे जो है ये काम करते हैं, बेसिकली दो आइडियोलॉजीज पे काम करते हैं. पहला है हिल्फर्डिंग जो है फोकस करते हैं व्हाट इज़ द आइडिया ऑफ स्टेजेस ऑफ कैपिटलिज्म, कि पूंजीवाद के क्या क्या चरण होते हैं, और दूसरा है नोशन ऑफ मोनोपोली कैपिटलिज्म. तो जो फर्स्ट है द स्टेजेस ऑफ कैपिटलिज्म या पूंजीवाद के क्या क्या चरण होते हैं, उसमें हमारा आता है मर्केंटलिज्म, इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म एंड फाइनली द फाइनेंस कैपिटलिज्म. ये हमारे मेन 3 स्टेजेस होती हैं कैपिटलिज्म की. एंड सेकेंड वॉज अ नोशन ऑफ मोनोपोली कैपिटलिज्म, की एकाधिकार पूंजीवाद का क्या मेन अर्थ होता है उस पर ये जो है वो फोकस करते हैं. सो व्हाट बेसिकली मोनोपोली कैपिटलिज्म स्टैंड फॉर कंट्रोल ऑफ सप्लाई, प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्रेड ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस. ये मेन बेसिक 4 फीचर्स आते हैं मोनोपोली कैपिटलिज्म के. कंट्रोल ऑफ सप्लाई, प्रोडक्शन, trade of a product or service stands for the monopoly capitalism. So Hilferding's approach constitute that the starting point of a new tradition in the Marxian economics which modified the Marx's original approach. According to the Paul Sweezy, who was also an economist, he argued that Hilferding analysis is the probably the clearest statement between the Marxian economics and the modern orthodox economics. अब ये जो पॉल स्वीजी जो है इंडिया खुद इकोनॉमिस्ट हैं, वो इसको हिल्फर्डिंग को सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि हिल्फर्डिंग की जो पूरी एनालिसिस है उसमें वो क्लियरली बताते हैं कि मार्क्सियन इकोनॉमिक्स कौन से होते हैं और मॉडर्न ऑर्थोडॉक्स इकोनॉमिक्स कौन से होते हैं. तो अब हम फर्स्ट अपने फैक्टर पे चलते हैं, फर्स्ट अपने ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं कि दैट व्हाट फाइनेंस कैपिटल वाज ऑल अबाउट, कि फाइनेंस कैपिटल आखिरकार अब है क्या.
तो इन इस बुक फाइनेंस कैपिटल, हिलफर्डिंग मेड हिज इंटेंशन क्रिस्टल क्लियर। अब ये पूरी अपनी बुक में जो इंटेंशन जो है क्लियरली बताते हैं कि इनकी आइडियोलॉजी मेन क्या है, और इनके आइडियोलॉजी जो है वो उनके टाइटल से ही दिखती है, अ स्टडी इन द लेटेस्ट फेज ऑफ द कैपिटल डेवलपमेंट। अब ये जो लेटेस्ट फेज़ है, अब इनके भी कुछ फीचर्स होते हैं जो वो इन फीचर्स के बेसिस पे बताते हैं। पहला है द फॉर्मेशन ऑफ द मोनोपोलिस्टिक एंटरप्राइज, की एकाधिकार उद्यम का जो है वो फॉर्मेशन होता है। एक पूरी मार्केट मोनोपोलिस्टिक एंटरप्राइजेज बेसिकली एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक सिंगल सेलर होता है, और वो सिंगल सेलर एक यूनिक प्रोडक्ट जो है मार्केट में सेल करता है, जिसकी वजह से वो मोनोपोली सॉर्ट ऑफ अपनी क्रिएट कर पाता है। दूसरा फीचर वो बताते हैं कि फ्यूजन होता है बैंक एंड इंडस्ट्रियल कैपिटल का, कि कैसे बैंक एंड इंडस्ट्रियल कैपिटल दोनों मिलके जो है एक अपनी मोनोपोली जो है वो क्रिएट करते हैं। थर्ड फैक्टर वो बताते हैं कि कैसे फॉर्मेशन होता है एक एक्सपेंशनिस्ट कॉलोनियल पॉलिसी का, और कैसे एनेक्सेशन एंड वॉर जो है वो शुरू हो जाता है। एनेक्सेशन एंड द वॉर इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रगल, कि एक स्ट्रगल जो है वो शुरू हो जाता है कोई भी मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। तो ये इन चीज़ों में मेन थ्री फोकस करते हैं अपने लेटेस्ट फेज की स्टडी में। सो बेसिकली द फाइनेंस कैपिटल सिग्निफाइज द यूनिफिकेशन ऑफ कैपिटल। तो इसमें बेसिकली वो कैसे बताते हैं कि कैसे एक यूनिफिकेशन किया जाता है कैपिटल का, और कैसे एक मोनोपोली जो है सॉर्ट ऑफ क्रिएट करी जाती है। तो अब हम मेन फोकस देखते हैं, सेकंड ऑब्जेक्टिव जो था वो हमारा था कि कैसे हिलफर्डिंग जो है चेंज करते हैं क्रेडिट एंड बैंकिंग का वर्ल्ड, कि कैसे हाउ हिलफर्डिंग एंड द चेंजिंग वर्ल्ड ऑफ द क्रेडिट एंड बैंकिंग। So, Hilferding analysis considered also capital export to be an inherent characteristics of the capitalism। तो अब इसमें वो कैपिटल एक्सपोर्ट के बारे में ज़्यादा फोकस करते हैं। कैपिटल एक्सपोर्ट बेसिकली कैसे पूंजी का जो है वो निर्यात होता है, कैसे पूंजी हमारी बाहर जाती है, हम कैसे कह सकते हैं कि कैसे ड्रेन ऑफ वेल्थ पे जो है वो फोकस करते हैं इस वाले फैक्टर पे। कि एक वो कहते हैं कि ये जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है या मोनोपोलिस्टिक स्टेज में इमर्जेंस हुआ है किसका, कार्टेलाइजेशन एंड ट्रस्टिफिकेशन। इसकी वजह से एक नीड जो है वो बढ़ गई है फॉरेन मार्केट कंट्रोल करने की। मतलब कि कैसे हिलफर्डिंग जो है वो फोकस करते हैं कैपिटल एक्सपोर्ट पे टू बी एक इनहेरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कैपिटलिज्म एंड इट्स लेटेस्ट फेज ऑफ मोनोपोलिस्टिक स्टेज दैट इमेनेटिंग फ्रॉम कार्टेलाइजेशन एंड ट्रस्टिफिकेशन। ये दो फैक्टर्स पे जो है वो फोकस करते हैं। और इस कैपिटल एक्सपोर्ट पे वो दो मेन अप्रोचेस जो हैं उस पे फोकस करते हैं। पहला जो हमारी अप्रोच होती है, ऑन द वन हैंड फर्स्ट इज अ surplus capital approach, and second was colonial extra profit approach. Number one, that is the surplus capital extra कैपिटल अप्रोच, जिसका मतलब क्या है कि कैसे जो हमारी जब मनी हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बाद कैसे जो सरप्लस जो है बच जाता है, उसके बाद वो कैसे हम उसको मनी को लगाएंगे। दैट इज द नंबर वन, दैट इज अ सरप्लस कैपिटल अप्रोच, जो क्या क्लेम करती है दैट while the volume of capital intended for the accumulation increases rapidly, a solution which it find in the export of the capital। एंड सेकंड दैट इज द कॉलोनियल एक्स्ट्रा प्रॉफिट अप्रोच, जिसका मतलब क्या है कि कैसे कोई भी एक लो वेज कंट्रीज को एक सोर्स बन जाती है एक्स्ट्रा प्रॉफिट गेन करने के लिए, कि मतलब एक नीड जो है एक ओवरसीज मार्केट को कंट्रोल करने के लिए एक नीड बढ़ती है। और इन नीड को कंट्रोल करने के लिए क्यों बढ़ती है, बेसिकली नीड फॉर द चीप लेबर एंड चीप रॉ मटेरियल, कि हमें वहाँ पे कोई भी कंट्री में अगर हम कोई भी कॉलोनी बना रहे हैं तो हम किस मुद्दे पे बनाएंगे कि वहाँ पे हमें कोई भी चीप लेबर जो है वो प्रोवाइड कराई जाएगी, और वहाँ पे चीप रॉ मटेरियल जो है वो मिलेगा। तो मेन बेसिकली वो अपना इस कैपिटल एक्सपोर्ट में ये दो मेन फोकस पे हम बात करते हैं, दैट इज़ अ सरप्लस कैपिटल अप्रोच एंड कॉलोनियल एक्स्ट्रा प्रॉफिट अप्रोच। एंड फाइनली वो हम देखते हैं कि कैसे हिलफर्डिंग जो है वो कॉरपोरेशन और जॉइंट स्टॉक मार्केट का रोल जो है वो बताते हैं अपनी पूरे एनालिसिस में, कि that Hilferding began his analysis of imperialism with a very thorough treatment of monetary economics and the rise of the joint stock companies, कि कैसे जो monetary economics है या कैसे monetary economics was basically the मौद्रिक अर्थशास्त्र है, कि कैसे मनी को जो है वो रेगुलेट करा जाएगा, वो उस पर फोकस करते हैं। और कि कैसे एक राइज होता है जॉइंट स्टॉक कंपनीज का, कि संयुक्त स्टॉक कंपनी का उदय कैसे होता है जो है वो इस पे बात करते हैं। तो under the rise of the joint stock companies as well as the banking monopoly led to the unprecedented concentration of capital, कि कैसे जो है बैंक और इंडस्ट्रियल कैपिटल की वजह से एक मनी जो है कैपिटल जो है वो हमारी जनरेट हुई है, जिसको वो टर्म देते हैं एक एज अ एसोसिएटेड कैपिटल, की वो एक क्या बन गई है, हमारी एक एसोसिएटेड कैपिटल जो है वो बन गई है। तो as monopolies took direct control of purchase, selling
opportunities for the investment in the commerce declined, and this had the effect of essentially forcing banking monopolies to invest directly in the production. कि कैसे एक बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो एक इंडस्ट्रियल हाउसेस को कंट्रोल करते हैं आइदर थ्रू लोन और इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से एक इम्पीरियलिज्म की कैपिटलिज्म की स्टेज जो है वो हमारी जनरेट होती है। ठीक है, तो हिल्फर्डिंग जो है वो लिखते हैं दैट एन एवर इंक्रीजिंग पार्ट ऑफ द कैपिटल of industry does not belong to the industrialist who use it. He demonstrated how the big bank and the financial institution in fact control industrial houses, and in this last stage of capitalism that is known as the finance capitalism. कि मतलब वो ये सेम बताते हैं कि कैसे बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंट्रोल करते हैं इंडस्ट्रियल हाउसेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली और थ्रू आइदर लोन्स और इन्वेस्टमेंट, और इस स्टेज में एक हमारी लास्ट स्टेज जनरेट होती है दैट इज़ नोन एज फाइनेंस कैपिटलिज्म। तो बेसिकली वो जो इस पूरे अपने एनालिसिस में इन मेन फोकस पे बात करते हैं। तो हम देखते हैं व्हाट बेसिकली द हिस्टोरियोग्राफी ऑफ ऑल अबाउट इन दिस। तो हमारे बहुत ज़्यादा दोनों वेज होते हैं कि वो लोग जो हिल्फर्डिंग को सपोर्ट करते हैं और वो भी जो हिल्फर्डिंग को जो है वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, हमारे दोनों आते हैं इसमें। तो हिल्फर्डिंग की जो ये बुक है इसमें जो सबसे पहले जो सपोर्ट करता है हिल्फर्डिंग को वो होता है हमारा ट्रॉट्स्की, जो who living in the Vienna and entertaining a quite friendly relation with him, and that time he wrote him an enthusiastic letter known as Dear Finance Capital Theoretician। एंड जो ट्रॉट्स्की जो है वो सपोर्ट करते हुए कहता है और एक अपना बहुत अच्छा लेटर जो है रिव्यू जो है वो लिखता है हिल्फर्डिंग को, जिसमें वो उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है एक एज अ डियर फाइनेंस कैपिटल थियोरिटिशियन, जिसमें वो बताते हैं ट्रॉट्स्की के अकॉर्डिंगली जो फाइनेंस कैपिटल है वो उसने अपने इस पूरे टॉपिक में बहुत सारे न्यू कंसेप्ट को जो है वो डेवलप करा है। ये किसका मानना है? ट्रॉट्स्की का मानना है, जो कि सपोर्ट करते हैं किसको? हिल्फर्डिंग को। सेकंड है हमारा ऑटोबॉर। ऑटोबॉर जो है एक बहुत अच्छा एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिव्यू लिखता है और उसमें पब्लिश करता है जर्नल में जिसका नाम है डेर कैम्प। ठीक है, हु वॉज ऑल्सो एन ऑस्ट्रो मार्क्सिस्ट थियोरिटिशियन। ऑटोबॉर जो है खुद एक ऑस्ट्रो मार्क्सिस्ट थियोरिटिशियन है। जनरल डर कैंप में वो जो है वो सजेस्ट करता है कि कैसे उसके फाइनेंस कैपिटल जो है एक डायरेक्ट कंटिन्यूशन माना जा सकता है कैपिटल वॉल्यूम 3 का। ये किसका मानना है? ऑटोबॉर का मानना है। बट बहुत सारे ऐसे हिस्टोरियंस हैं, जब हिल्फर्डिंग ने बुक लिखी थी तो उसके बाद बहुत सारा क्रिटिसिज्म जो है वो शुरू हो गया था, एंड जो फर्स्ट क्रिटिसाइज जो है वो उसे करता है वो है कार्ल कॉट्स्की। कार्ल कॉट्स्की जो है वो क्या कहता है कि हिल्फर्डिंग ने जो है अपनी पूरी मार्क्स थ्योरी को जो है वो बताया एक ऑर्थोडॉक्स वर्जन के बेसिस पे। वो कहते हैं कि कार्ल कॉट्स्की आर्ग्यू दैट अगेंस्ट हिल्फर्डिंग्स अटेम्प्ट टू एक्सटेंड मार्क्स थ्योरी एज इट्स द ऑर्थोडॉक्स वर्जन, की पूरी मार्क्स थ्योरी को जो है वो ऑर्थोडॉक्स वर्जन के बेसिस पे जो है वो बताता है। नेक्स्ट हमारा हिस्टोरियन जो है वो आता है हमारा बर्नस्टीन। बर्नस्टीन जो है वो रिजेक्ट करता है हिल्फर्डिंग के ट्रीटमेंट को और वो बताता है कि पूरा जो बैंक और इंडस्ट्रियल जो पूरा उन्होंने फ्यूजन बताया था वो उसी थ्योरी को जो है वो रिजेक्ट कर देता है। मतलब कैसे बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंट्रोल करते हैं इंडस्ट्रियल हाउसेस को, और ये जो इंडस्ट्रियल हाउसेस को कंट्रोल करते हैं इसकी वजह से एक लास्ट स्टेज जनरेट होती है। वो बर्नस्टीन जो है इस पूरे आइडिया को ही रिजेक्ट कर देता है। वो कह देता है कि ऐसा कोई आइडिया है ही नहीं, पूरे इस आइडिया को जो है वो रिजेक्ट करते हैं, उसको क्रिटिसाइज करता है। बट इन दोनों को इग्नोर करते हुए रोज़ा लग्जमबर्ग जो है वो क्या सपोर्ट करती है हिल्फर्डिंग को, और वो क्या कहती है कि दैट स्टेटेड दैट हिल्फर्डिंग हैड नो रीज़न ऑफ टू कंप्लेन अबाउट द एमिनेंट लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट ऑफ हिज बुक ऑन द फेलो सोशलिस्ट। की हिल्फर्डिंग का जो उन्होंने बुक लिखी उसके बाद से ही उनके जो फेलो सोशलिस्ट हैं या जो आने वाले जितने भी हिस्टोरियंस हैं आगे के, उन पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है वो पड़ा है। और वैसे ही वो एक एग्जांपल देते हुए कहते हैं कि कैसे बुखारिन और लेनिन ने जो इनके आइडियोलॉजी को जो है वो फॉलो किया, और अपनी बुक में भी उन्होंने जो है इस बात की चर्चा करी। फर्स्ट जो बुखारिन जो है वो 1915 में कहते हैं कि ओपनली एक्नॉलेज दैट ही हैड बीन इंस्पायर्ड बाय इट and had actually taken it as a starting point of his own analysis। कि कैसे 1915 में बुखारिन जो है वो इंस्पायर्ड होते हैं और कहते हैं कि मैंने खुद एक अपनी पूरे एनालिस्ट में स्टार्ट किया है खुद के एनालिसिस, और वो एक फ्रेज यूज़ करते हैं द कॉलेसेंस ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड बैंक कैपिटल की। मतलब वो खुद के अपनी पूरी एनालिसिस में इस बात को सपोर्ट करते हुए कहते हैं।
सेकंड जो है वो हमारा है लेनिन। लेनिन जो है वो 1917 में खुद लिखते हैं, बुक लिखते हैं, दैट इज़ द इम्पीरियलिज्म द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। और इस बुक में जो कि पब्लिश हुई थी 1917 में, इम्पीरियलिज्म जो है वो टर्म कर लेनिन जो है वो टर्म करते हैं इम्पीरियलिज्म को, फाइनेंस कैपिटलिज्म को बेसिकली एज द मर्जिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल विद बैंक कैपिटल, कि कैसे इंडस्ट्रियल और बैंक कैपिटल का मर्जन होता है, कैसे बेसिकली द फ्यूजन ऑफ द बैंक एंड इंडस्ट्रियल कैपिटल। वो खुद अपनी बुक में 1917 में इस बात की चर्चा करते हैं। तो ये हमारे बेसिकली ये जो हिस्टोरियंस हैं वो हैं। बट अगर हम कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस की बात करें कि व्हाट आर द बेसिक कंटेम्प्रेरी हिस्टोरियंस, की जो हमारे फ्रॉम 2025 टू 2023 में ऐसे कौन कौन सी बुक्स या आर्टिकल्स आई हैं जिसमें हिल्फर्डिंग के बारे में बात करी गई है। जो पहली है हमारा आर्टिकल और द बुक ऑफ द रुडोल्फ हिल्फर्डिंग वाज रिटन बाय एम कुराता, दैट इज वाज इन 2019, जो कि पब्लिश्ड हुई थी 2019 में। एंड लिखते हैं वो रुडोल्फ हिल्फर्डिंग एंड दास फिनांस कैपिटल। ये बुक जो है बहुत ज़्यादा एक प्रोमिनेंट मार्क्सिस्ट इकोनॉमिक्स की एक बुक है जो कि यूरोप में बहुत फेमस हुई थी एम कुराता के थ्रू। एक दूसरा आर्टिकल है जिसमें हम देखते हैं व्हाट डू वी स्टिल हैव टू लर्न फ्रॉम हिज लेगेसी, पब्लिश्ड इन 2020। एक जो आर्टिकल है ये व्हाट डू वी स्टिल हैव टू लर्न फ्रॉम हिज लेगेसी, जो कि एक आर्टिकल पब्लिश्ड हुआ था 2020 में, किसके द्वारा, बाय जे डेलहिम एंड द एफ वॉल्फ के द्वारा। और दूसरा आर्टिकल जो है वो हमारा पैट्रिक बॉन्ड के द्वारा पब्लिश करा गया था 2021 मार्च में, जिसका नाम क्या है, लर्निंग फ्रॉम हिल्फर्डिंग्स फाइनेंस कैपिटल, मनी, बैंकिंग एंड क्राइसिस। ये सारे आर्टिकल्स हैं या ये सारे जर्नल्स या बुक हैं जो हमारी अभी कंटेम्प्रेरी में हम देखते हैं, जिसमें हिल्फर्डिंग की बात करी गई है और उसको सपोर्ट करा गया या क्रिटिसाइज भी करा गया है उसके आइडियोलॉजीज़ के बेसिस पे, जो कि एक इकोनॉमिक्स थ्योरी के बारे में जो है ये बात करते हैं। तो अब हमें पता क्या चलता है अगर हम कंक्लूड करने के लिए सोचें कि व्हाट बेसिकली वी अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस, दैट डज टू कंक्लूड that the emergence of the power of finance capital does not indeed signal new era of capitalism. Financial institution rising power allowed to credit and speculations to beyond bounds of rationality and to funnel a new investment into the four corners of the globe, speeding the uneven development of capitalism. At the same time, the competition is heightened and the profit increasingly equalized. And we therefore we stated that the policy of finance capitalism has three objectives. फर्स्ट अगर हम देखें कि पूरा इस बारे में हम देखते हैं कि हुआ क्या था, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि फाइनेंस कैपिटलिज्म के तीन बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं या तीन बेसिक पॉलिसी जो फाइनेंस कैपिटलिज्म की है, जो रुडोल्फ हिल्फर्डिंग ने लिखी है, वो तीन बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स उन्होंने जो है बताए हैं। पहला है टू एस्टैब्लिश द लार्जेस्ट पॉसिबल टेरिटरी, की इतनी बड़ी टेरिटरी बनाओ जितनी तुमसे पॉसिबल हो सके, उतने एरियाज को कंट्रोल करो जहाँ पे चीप मार्केट हो या चीप रॉ मटेरियल जो है वो हमारे लिए इजीली अवेलेबल हो, वो उस पर फोकस करते हैं। दूसरा वो कहते हैं टू क्लोज द टेरिटरी टू द फॉरेन कंपटीशन बाय अ वॉल ऑफ द प्रोटेक्टिव टेरिफ्स, कि जितना भी अपने फॉरेन कंपटीशन से क्लोज हो जाओ, मतलब अपने टेरिफ्स को बेसिकली फाइनेंस कैपिटलिज्म को फॉलो करो या फर्स्ट मर्केंटलिज्म की आइडियोलॉजी को फॉलो करो, कि कैसे हमें अपनी पूरी मार्केट पे कंट्रोल करना है, कैसे हमारी मोनोपोलिस्टिक एंटरप्राइज जो है वो हमें क्रिएट करना है, वो एक हम देखते हैं पूरे पूरे इस पूरे हिल्फर्डिंग के एनालिसिस में। तीसरा वो हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्या था इस फाइनेंस कैपिटलिज्म का। तो लास्टली टू रिजर्व इट्स एंड एरिया ऑफ एक्सप्लॉयटेशन फॉर द नेशनल मोनोपोलिस्टिक कॉम्बिनेशंस, की हमें एक ऐसे एरियाज़ को रिजर्व करके रखना है जहाँ पे हम अपनी कोई भी कॉलोनी या कोई भी मार्केट जो है वो हम सेटअप करना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने इस पूरे देखा कि कैसे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो हमने क्या देखा था कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या था, कि व्हाट वाज फाइनेंस कैपिटलिज्म ऑल अबाउट, कि फाइनेंस कैपिटलिज्म आखिरकार है क्या और क्या लेटेस्ट फेज की जो है वो उनकी आइडियोलॉजी है। तो लेटेस्ट व्हाट बेसिकली द फाइनेंस कैपिटलिज्म वॉल अबाउट, कि उन्होंने क्या बात करी थी उसमें। तो बेसिक हम अगर हम टर्म्स देखें, की टर्म्स देखें इस पूरे हमारे एनालिसिस में, तो उन्होंने 4 to 5 की टर्म्स जो है वो यूज़ करी हैं। पहला है स्टेजेस ऑफ कैपिटलिज्म, मोनोपोलिस्टिक एंटरप्राइज, आइडिया ऑफ लेटेस्ट फेज, और कैपिटल एक्सपोर्ट, कार्टेलाइजेशन, ट्रस्टिफिकेशन एंड द कैसे कैपिटल एंड राइज ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनीज जो है वो इन पूरे अपने लेक्चर में जो है थ्रू आउट द लेक्चर वो इसी पे बात करते हैं और कैसे रोल है इन अलग अलग इनका, इसके बारे में बताते हैं।
तो मैंने जो है इसमें हमने बुक जो है बेसिकली अगर हम देखें कौन कौन से रेफरेंसेस जो है वो यूज़ करे गए हैं, पहला है रुडोल्फ विल्फर्डिंग फाइनेंस कैपिटल अ स्टडी ऑफ द लेटेस्ट फेज इन द कैपिटल डेवलपमेंट दैट वाज पब्लिश्ड इन लंदन in 1910, and second was by the Anthony Brewer in 1980, Marxist Theories of Imperialism, a Critical Survey, first edition, and finally the R. Owen and the Stuckfield 1972 Studies in the Theory of Imperialism and London. तो ये बेसिक हमारे रेफरेंसेस हैं. थैंक यू.